شکر خدا کرو ماہ رحمان آ گیا، تقسیم کرنے نعمتیں رمضان آ گیا۔ اللہ تیرا ہے احسان روز نمازیں۔ السلام علیکم ناظرین گرامی، روبی چینل کی خصوصی پیشکش نور رمضان پروگرام میں میں آصف علی آپ کا خیر مقدم کرتا ہوں۔ اس پروگرام کے تحت روزانہ ختم رمضان تک 3:30 بجے سہ پہر مختلف عنوانات پر گفتگو ہو رہی ہے، اور اس پروگرام میں ناظرین کے سوالات بھی لیے جا رہے ہیں۔ ناظرین گرامی، ہم اور آپ جانتے ہیں کہ نہ صرف شہر، ریاست، ملک بلکہ سارے عالم میں اس وقت لاک ڈاؤن جاری ہے۔ کرونا وائرس کی وبا سے نمٹنے کے لیے حکومتوں کی جانب سے یہ اقدام کیا گیا ہے، اور عوام سے بارہا اپیل کی جا رہی ہے کہ وہ اپنے گھروں ہی میں رہیں۔ رمضان المبارک کی مناسبت سے مسلمانوں سے بھی اپیل کی گئی ہے کہ وہ اپنی عبادات و اذکار کا اہتمام اپنے گھروں ہی میں کریں۔ روبی چینل اور انتظامیہ اپنی جانب سے بھی ناظرین سے یہ اپیل کرتا ہے کہ وہ عبادتوں کو اپنے گھروں ہی میں یقینی بنائیں، اور نماز تراویح کا اہتمام بھی خود اپنے ہی گھروں میں کریں۔ ناظرین گرامی، آئیے پروگرام کا آغاز کیے دیتے ہیں۔ میرے ساتھ مولانا سید شاہ ذوالفقار صدیقی قادری الملتانی موجود ہیں اس وقت، جو پروفیسر ہیں، ایکس ڈین ہیں عثمانیہ یونیورسٹی کے۔ آج کا جو عنوان منتخب کیا گیا ہے، امر بالمعروف و نہی عن المنکر، یعنی بھلائی کا حکم اور برائی سے روکنا۔ قرآن شریف کی جو آیت ہے، قرآن شریف کا جو حکم ہے، اس پر جو ہے آج تفصیلی طور پر گفتگو ہوگی۔ ناظرین بھی اس پروگرام کا حصہ بن سکتے ہیں۔ اسکرین پر ایک نمبر دیا جا رہا ہے، اس نمبر پر کال کرتے ہوئے آپ اپنا سوال کر سکتے ہیں۔ میں مولانا سے گزارش کروں گا کہ وہ آج کا جو عنوان دیا گیا ہے اس کے تئیں کچھ تمہیدی کلمات سے ناظرین کو نوازیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سيدنا الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الأكرمين الأمجدين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنحون عن المنكر، صدق اللہ العظیم۔ ناظرین محترم، سامعین معظم، دوستوں اور بزرگوں، رمضان مبارک کا مہینہ اپنے شباب پر ہے۔ لوگ بھلائیوں کی طرف راغب ہیں۔ ناظرین محترم، ہر آدمی نیکی کرتا ہے اور برائی سے رکتا ہے۔ یہ اچھی بات ہے اور ایسا ہی کرنا بھی چاہیے، لیکن دوستوں اور بزرگوں، ہم
نیک ہیں تو ہم پر یہ ذمہ داری ہے کہ اوروں کو بھی نیکی کی طرف لے آئیں. ہم برائی سے رک رہے ہیں تو ہم پر ذمہ داری ہے کہ اوروں کو بھی برائی سے روکیں. اسی کو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کہتے ہیں. اس آیت کریمہ کو میں نے موضوع سخن بنایا ہے. اس میں خلاق عالم ہم سے مخاطب ہے اور ارشاد فرماتے ہیں کنتم خیر امہ اخرجت للناس تعمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. رب کائنات آپ کو ہم کو خیر امت کے لقب سے ملقب فرما رہے ہیں. ہم سے تخاطب ہو رہا ہے، ہم سے گفتگو ہو رہی ہے، ہم سے خطاب ہو رہا ہے تو ہم کو خیر امت کے خطاب سے گفتگو کا آغاز کیا جا رہا ہے. دوستو، سارے نبیوں میں افضل ترین حضور پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم ہیں. افضل الانبیاء ہیں حضور پاک. تو اسی طریقے سے ساری امتوں میں افضل ترین امت حضور ختمی مرتبت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے. تو ہم اور آپ معمولی نہیں ہیں. ہم کو رب نے بڑی شان سے سرفراز فرمایا ہے. یہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ ہم حضور پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم کی امت میں پیدا ہوئے ہیں. دوستو اور بزرگوں، موسیٰ کی خواہش تھی، عیسیٰ کی خواہش تھی کہ ہم کو نبوت نہیں محمد عربی کا امتی ہونا نصیب ہو. نبوت سے زیادہ ان کی تمنائیں، ان کی خواہشیں حضور کے امتی ہونے کی تھی. تو بہت بڑا اعزاز ہم کو اللہ نے دیا ہے. دوستو، بڑے معزز و مکرم اہمیت سے آپ اور ہم کو سرفراز کیا ہے. کنتم خیر امہ، یہ خطاب رب کائنات ہم کو اور آپ کو دے کر مخاطب ہو رہا ہے. تو دوستو، اتنا زبردست تاج ہمارے اور آپ کے سروں پر ہے. جب خیر امت ہے تو اب خیر امت کی ذمہ داری کیا ہے؟ خیر امت کی ڈیوٹی کیا ہے؟ خیر امت کے فرائض کیا ہیں؟ تو بحیثیت خیر امت ہم کو کیا کرنا ہے، ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں؟ تو اسی آیت کریمہ میں بتایا جا رہا ہے کنتم خیر امہ اخرجت للناس تعمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. دو ذمہ داریاں ہم کو دیے گئے ہیں بحیثیت خیر امت ہونے کے. جو ٹائٹل ہم کو دیا گیا ہے اس میں دو ذمہ داریوں کے ساتھ وہ ٹائٹل ہم کو اپنے سر پر بحیثیت تاج رکھنے کا حق ہے، جبکہ دو ڈیوٹیز ہم ادا کریں، دو ذمہ داریوں کو ہم نبھائیں. وہ دو ذمہ داریاں کیا ہے؟ ایک امر بالمعروف اور دوسری ذمہ داری نہی عن المنکر ہے. دوستو، ہم پر لازمی ہے
हम पर फर्ज है, हमारी ड्यूटी है कि हम भलाई का प्रचार करते रहें, हम भलाई को फैलाते रहें, हम लोगों को भलाई की तरफ लाते रहें, नेकियों की तरगीब देते रहें, हसनात की तरफ उनकी तवज्जो को मबजूल कराते रहें। ये तामुरून बिल मारूफ, ये एक ड्यूटी है। और जो दूसरी ड्यूटी है वतनहौना अनिल मुनकर, लोगों को बुराई से रोकना, लोगों को बुराई से रोकना। काम गलत हो रहा है, गुनाह का काम हो रहा है, तो दोस्तों ये हमारी जिम्मेदारी है। हम आंख बंद करके वहां से नहीं जा सकते हैं। बहैसियत मुसलमान ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम जहां बुराई हो रही है वहां पर बरमला हम उस बुराई को रोकें। जहां गुनाह हो रहा है हम उस गुनाह के मुर्तकिब होने से लोगों को रोकें। ये हमारी जिम्मेदारी है। अमर बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर। दोस्तों, मैं अपनी जिम्मेदारी करके, अपनी ड्यूटी करके नबद आजमा नहीं हो सकता। मैं पूरे 5 वक्ता नमाजें पढ़ रहा हूँ, रमज़ान के रोज़े रख रहा हूँ, ज़कात भी दे रहा हूँ, हज भी किया हूँ और खैर के कामों में बहुत दिलचस्पी लेता हूँ। मैं जर्नल बात कर रहा हूँ, तो मैं सब कर रहा हूँ। लेकिन दोस्तों, अगर मैं लोगों को इन चीज़ों की तरगीब ना दूं तो मैं अपनी जिम्मेदारी अदा नहीं कर रहा हूँ। मैं अपनी जिम्मेदारी को नहीं निभा रहा हूँ। जब मैं कर रहा हूँ तो मेरी जिम्मेदारी है कि औरों को भी खैर की तरफ लाएं। मैं नमाज पढ़ रहा हूँ तो मेरी जिम्मेदारी है मैं अपने अहले खाना को भी नमाज की रग़बत दूँ। मैं अपने पड़ोसियों को भी नमाज की रग़बत दिलाऊं। अपने महल्ले वालों को भी मैं नमाज की तरफ लेकर जाऊं। ये मेरी जिम्मेदारी है। मैं कर लिया, मैं पढ़ लिया, आपकी जिम्मेदारी नहीं हुई। आपकी जिम्मेदारी कब मुकम्मल होगी? तब आप लोगों को अपने साथ खैर में शरीक रखेंगे। क्यों कि ये हमारे पर ये फरीज़ा है, ये मिल्ली फरीज़ा है हर मुसलमान पर। हर मुसलमान की ये जिम्मेदारी है। रोज़ा मैं रखता हूँ और दोस्तों मेरे बच्चे रोज़ा नहीं रखते हैं या मेरी बीवी रोज़ा नहीं रखती है, तो दोस्तों मेरी जिम्मेदारी है कि मैं अपने बच्चों को भी रोज़ा रखाऊं, अपनी बीवी को भी रोज़ा रखाऊं, अपने पड़ोसियों को भी बोलूं कि वो रोज़ा रखें, अपने महल्ले जावारों को भी रोज़े की तरफ लेकर आऊं। तो मिन हैसुल मुसलमान, एक मुसलमान की जिम्मेदारी है कि वो फ़राइज़, सुनन, वाजिबात, मुस्तहब्बात वो ख़ुद अमल करता है। करते हुए उसका अमल मकबूल तभी होगा तब वो औरों को भी अपने अमल की तरफ लेकर आए, औरों को भी हसनात की तरफ तवज्जो दिलाए, औरों को भी नमाजी बनाए, औरों को भी रोज़ेदार बनाए, औरों को भी खैर का काम करने वाला बनाए। ये हमारी जिम्मेदारी है। और दोस्तों, मैं बुराई से रुकता हूँ, मैं झूठ नहीं बोलता हूँ, मैं किसी पर जुल्म नहीं करता हूँ, मैं किसी से ज़्यादती नहीं करता हूँ। दोस्तों, मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं अपनी जिम्मेदारी पूरी अदा नहीं किया, तब तक मैं अपने मुआशरे को,
अपने घर को, अपने पड़ोसियों को, अपने अहले मोहल्ला को, अपने अहले शहर को बुराई से न रुकाऊं। तो ये मुसलमान की जिम्मेदारी है, ये मुसलमान की ड्यूटी है। और ये दो जिम्मेदारियां खैर उम्मत, जब हमको इतना बड़ा टाइटल मिला है, इतने बड़े लक़ब से हम और आप मुलक़ब है, बड़ी शान के साथ हम खैर उम्मत अपने आप को कहते हैं। दोस्तों, कब हो सकते हैं खैर उम्मत? तब ये दो ड्यूटीज हम अदा करें, भलाई का प्रचार भी दें और बुराई से रोकें भी। जब तक ये ड्यूटी हम अदा नहीं करेंगे दोस्तों, हम खैर उम्मत नहीं। हमारी हसनात बारगाह इज़्ज़ी में कबूलियत ताम्मा तभी हासिल करेंगी, तब हम ये जिम्मेदारियों को हम निभाते रहेंगे। नाज़रीन मोहतरम, हज़रत आयशा की रिवायत है, हज़रत सैयदतुना उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की रिवायत है। हुज़ूर ने फरमाया कि एक बस्ती में 18,000 लोग मुक़ीम थे। एक बस्ती में 18,000 अफराद की एक बस्ती थी और उन 18,000 अफराद के आमाल अंबिया के अमल की तरह उनके आमाल थे। उनके अमाल नबियों के अमल की तरह उनके अमल थे। उस तरीके से वो अमल करते थे, खैर, फ़राइज़ की अदायगी, अहकाम शरआ पर अमल, इस तरीके से उनके अमाल थे। लेकिन दोस्तों, हुजूर ने फरमाया उन पर अजाब मुसल्लत हुआ, उन पर अजाब इलाही मुसल्लत हुआ। सहाबा ने पूछा, या रसूलल्लाह, अंबिया के जैसे अमल हो और फिर ऐसी बस्ती पर अजाब इलाही? तो दोस्तों, हुजूर ने इरशाद फरमाया, वो तो अमल अंबिया की तरह करते थे, लेकिन लोगों को खैर की तरफ नहीं बुलाते थे, लोगों को बुराई से नहीं रोकते थे। वो खुद सेल्फ, उनका अमल नेक था, उनका अपना अमल अंबिया की तरह था, लेकिन वो अपने अमल में औरों को शरीक नहीं करते थे, बुराई में लोगों को नहीं रोकते थे। तो ये ड्यूटी ना करने की वजह से अल्लाह ताला ने उन पर अजाब को मुसल्लत किया है। अजाब इलाही उन पर मुसल्लत इसलिए हुआ कि वो भलाई का प्रचार नहीं करते थे, बुराई से लोगों को रोका नहीं करते थे, इसलिए उन पर अजाब इलाही मुसल्लत किया गया है। नाज़रीन मोहतरम, देखिए, बुराई को रोकना बड़ी अहम जिम्मेदारी है। अगर हम बुराई को, बुरा करने वाले को नहीं रोकेंगे तो ये हम उसकी बुराई में हम उसका ताउन करने वाले हो जाएंगे। तावनु अलल बिर्रि वत्तक़वा वला तावनु अलल इस्मि वल उद्वान। कुरान कह रहा है, नेकी की तरगीब के लिए तुम मदद दिया करो, हसनात करने के लिए तुम लोगों को तवज्जो दिलाते रहो, तक़वे की तरफ लोगों को लाने में तुम अपनी मुमिद मुआविन हैसियत का लोहा मनवाओ। तावनु अलल बिर्रि वत्तक़वा वला तावनु अलल इस्मि वल उद्वान। गुनाहों की तरफ तुम लोगों के लिए उम्मीदो मददगार मत हो जाओ। एक कॉलर हमारे साथ है मौलाना, हमारी गुफ्तगू जारी रहेगी। देखते हैं कौन साहब और कहाँ से। अस्सलाम वालेकुम जी। जी 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 बिल्कुल मोहतरम। देखिए, ये जो है एक मजहबी नोयत का प्रोग्राम है, तो आपके पास ऐसा कोई सवाल है रमज़ान से मुताल्लिक़ या मजहबी नोयत का, तो आप कर सकते हैं। बसूरत दीगर हमारा जो अगला प्रोग्राम होगा उसमें जो है आप अपने सवालात कर सकते हैं। कॉल करने के लिए शुक्रिया जी।
नाज़रीन मोहतरम, हमारे जो ये चैनल का मकसद है, हम आपसे आपकी ज़रूरियात, यकीनन आपके साथ ज़रूरियात लाहक हैं, आपके साथ मसाइल में दो चार हैं, हम देख रहे हैं, हम वाकिफ़ भी हैं, लेकिन इस चैनल से हम उन चीज़ों का हल करने का इख्तियार नहीं रखते हैं। हमको बड़ी तकलीफ़ हो रही है ये बात आपसे कहने के लिए कि यहाँ हम आपकी ज़रूरियात को अंजाम देने की हम इस चैनल से ताकत नहीं रखते हैं। आपकी ज़रूरियात है, यकीनन आपकी तकलीफ़ है, आपको इख्तियार है अपनी तकलीफ़ का इजहार करने का, तो आप कर रहे हैं, लेकिन हम माज़रत ख़्वाह हैं कि आपकी तकलीफ़ का मुदावा करने में हम इस चैनल से कुछ आपकी मदद करने के मौक़िफ़ में नहीं हैं। ये चैनल हम मजहबी जो आपके उमूर, जो मसाइल हैं, नमाज पंजगाना के कोई मसाइल हैं, रोज़े के कुछ मसाइल हैं, या ज़कात के मसाइल हैं, या तहारत के मसाइल हैं, या कुछ ऐसे मसाइल हैं जो आपके लिए जिसमें शरई रहबरी की आपको ज़रूरत हो, तो हम उस खिदमत के लिए यहाँ बैठे हुए हैं। इंशाअल्लाह जो आपकी बातें आ रही हैं, हम उसके लिए दुआगो हैं और कोशा भी हैं। ऐसा नहीं कि हम बिल्कुल उससे बेबलद हैं, हम उस ज़िमन में कोशा भी हैं। हम अपने हत्तल बिसात, हत्तल मक़दूर, हम अपनी कोशिश को जारी रखते हैं। बहरहाल यही ख्वाहिश करते हैं कि इल्मी मसाइल से हमसे राब्ता क़ायम करे, तो ये आपके लिए ज़्यादा सूदमंद और फ़ायदेमंद होगा। बहरहाल मैं अपने मौजू की तरफ आता हूँ कि आज का मौजू दोस्तों अमर बिल मारूफ नहीं अनिल मुनकर है। भलाई का प्रचार और बुराई का खात्मा, यही हमारा आज का उन्वान है। तो दोस्तों, बुराई को रोकना ये हम पर फरीज़ा है। हदीस शरीफ में आता है, मन रआ मिनकुम मुनकरन फलयुगय्यिर बियदिही, उसके बाद फबिलिसानी, उसमें 3 स्टेजेस बताए गए हैं इस हदीस शरीफ में। तुम में कोई अगर बुराई को देखे तो कहा जा रहा है फौरी उसको रुका दो, उसको रोक दो। कैसे रोको? ज़ुबान से रोक सकते हो तो ज़ुबान यानी कहकर अपने कौल से, अपनी गुफ्तगू से उसको रोक दो। अगर बातचीत से नहीं रुक रहा है तो ज़रा आगे बढ़ के अपनी ताकत का मुजाहरा करते हुए उस बुराई को रोक दो। फितने फसाद को रोनुमा होने मत दो, ये बताया गया। जब तुम्हारी ज़ुबान भी कारगर नहीं है और तुम्हारे पास अत्तर मकदूर कुछ ताकत भी नहीं है, तो फरमा रहे हैं इस हदीस शरीफा में, हुज़ूर पाक का इरशाद है कि अब अपने दिल में उसको बुरा समझकर खामोश हो जाओ। तुम न ज़ुबान से, अपनी गुफ्तार से उसको रोक सकते हो, न तुम्हारे पास कोई बिसात और कोई ताकत है। तो फरमाते हैं जब ये 2 अमल से तुम बुराई को नहीं रोक सकते हैं, तो तुम अपने दिल में उसको बुरा समझकर तुम वहाँ से चलते बनो। तो दोस्तों, बुराई का सत्तेबाब करना अशद ज़रूरी है। बुराई का खात्मा ये हमारी बुनियादी जिम्मेदारी है। बुराई फैलते रहे तो दोस्तों भलाई क्या काम करेगी? पहले बुराई का खात्मा करो, उसके बाद भलाई का प्रचार करो, तो वो कारआमद होती है। ज़मीन पर बीज कब डाले जाते हैं? ज़मीन पर पूरे खारदार दरख्त हैं, कांटे भरे बबूल के दरख्त पूरी ज़मीन में फैले हुए हैं। दोस्तों, वहाँ पर बीज डालेंगे तो क्या आपको फल मिलेगा? नहीं। पहले काम उस कीकर, उस बबूल के दरख्तों को, उस कांटे भरी जो ज़मीन पर झाड़े फैले हुए हैं,
उन झाड़ों को साफ करना होगा, उसके बाद उस ज़मीन को जोतना होगा, उसके बाद उस पर आप बीज डालीजिए, वो ज़मीन आपके लिए नफ़ा बख्श होगी, उस ज़मीन से आपको समर मिलेगा, उस ज़मीन से आपको फल मिलेगा, वो ज़मीन आपकी ज़रूरियात को तकमील करेगी। तो नाज़रीन मोहतरम, कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊल, हदीस पाक में आता है, तुम में का हर शख्स निगरान है और हर शख्स तुम में का उससे पूछा जाएगा, मसऊल है, बासपुरस की जाएगी। तो ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम निगरान भी हैं, हम मुहाफिज भी हैं, हम कल हमसे पूछा भी जाएगा। जब तक ये तवज्जो, ये नज़रिया हमारा ना हो दोस्तों, कोई अमल कारगर नहीं है। सिद्दीक़ अकबर हुज़ूर पाक अलैहिस्सलातु तस्लीम से पूछते हैं, या रसूलल्लाह, जिहाद से भी कोई फजीलत वाला अमल है? जिहाद से भी कोई ज़्यादा अजर वाला अमल है? जी मौलाना माजरत खां हूँ मैं, एक कॉलर हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी मोहतरमा, कौन और कहाँ से? जी, मरहूमैन के लिए आप कुरान शरीफ की तिलावत करते हुए बख्शना चाहती हैं। जी बिल्कुल, इस सिलसिले में भी बात करेंगे मोहतरमा। कॉल करने के लिए शुक्रिया। जी मौलाना, मरहूमैन की बख्शिश के लिए कुरान शरीफ की आयत पढ़ते हुए वो बख्शना चाहती हैं, तो इस सिलसिले में शरई हुक्म क्या है? एक और कॉलर भी हैं, हम ये भी सवाल ले लेंगे इसके बाद जो है। अस्सलाम वालेकुम। जी कौन और कहाँ से? जी मोहतरम। जी ये मालूम करना था, रमजान के महीने में या कभी भी जी कुरान शरीफ पढ़ के अपने वालिदैन को बख्श सकते क्या? और एक बात, उम्र खज़ा की नमाज कैसा पढ़ी जाए, वो मालूम करना था। अच्छा, ख़ज़ाए उमरी की बात कर रहे हैं आप, जो नमाज़ें छूट चुकी हैं उसकी बात। जी बिल्कुल, इस सिलसिले में बात करेंगे मोहतरमा। कॉल करने के लिए शुक्रिया। जी शुक्रिया। जी मौलाना, इसी से रिलेटेड सवाल आया है कि मरहूमैन के लिए कुरान शरीफ की तिलावत करते हुए क्या किया जा सकता है? देखिए, मरहूमीन जो इंतकाल कर गए हैं वो हमारे ईसाल सवाब के मुंतज़िर रहते हैं, वो हमारे ईसाल सवाब के मुंतज़िर रहते हैं। तो जो ज़िंदा है उन पर ज़िम्मेदारी है कि अपने मरहूमीन के ईसाल सवाब के जो ज़राए हो सकते हैं उन ज़राए को इख्तियार करके अपने मरहूमीन को उन हसनात का सवाब पहुंचा दें। दोस्तों, अब ये किस तरीक़े से हम ईसाल सवाब कर सकते हैं? एक तो खैर व खैरात हम करके उसका ईसाल सवाब अपने मरहूमीन को दे सकते हैं। हम कोई गुरबा, अब आज के हालात हैं, इन हालात में आप लॉकडाउन हैं, ज़रूरतमंद परेशान हैं, दोस्तों उन गुरबा को आप पैसा दीजिए या उनको अनाज दीजिए, जो आपकी सहूलत है वो दीजिए। इसमें नियत ये रख लीजिए, इलाहुल आलमीन, मैं ये जो दे रहा हूँ, मैं अपने माँ बाप, दादा दादी, नाना नानी या जो आप जिनको मुनासिब समझते हैं उनके ईसाल सवाब के लिए मैं ये अमल कर रहा हूँ, इसका अजर मरहूमीन को पहुँचे। तो दोस्तों, इधर आप खर्च करते हैं, आपके भी नामे अमाल में मिन वान पूरा अजर आपको मिलेगा, फिर उसका अजर आपके मरहूमीन को भी मिलेगा। तो इन्फाक और खैर व खैरात के ज़रिए से आप अपने मरहूमीन को ईसाल सवाब कर सकते हैं। दूसरा, कुरान पाक की तिलावत करके, तिलावत कलाम पाक तिलावत कलाम पाक के ज़रिए आप, मैंने इलाहुल आलमीन, मैंने सूरह फातिहा पढ़ा, मैंने एक पारा पढ़ा, मैंने 10 पारे पढ़े, मैंने 30 पारे मैंने मुकम्मल किया। एक पारा पढ़ो या एक सूरा पढ़ो
या 10 पारे पढ़ो या 5 पारे पढ़ो या पूरी मुकम्मल कुरान पढ़ो, जितना आपने पढ़ा है आप बारगाह उलूहियत से रुजू होकर कहें, मौला मैंने जो कुछ पढ़ा है, मैंने जितना तिलावत कलाम पाक किया है, इसका सवाब हुज़ूर पाक अलैहिस्सलातु तस्लीम के रूह पुरफुतूह को पहुँचे। हुज़ूर पाक की खिदमत मुक़द्दसा में इस सब का जो हमने तिलावत किया, इसका सवाब हुज़ूर की खिदमत मुक़द्दसा में पहुँचे। उसके बाद दोस्तों सारे अंबिया को आप दुआ में शामिल रखिए। उसके बाद सारे सहाबा को आप दुआ में शामिल रखिए। बदर के सहाबा, जंग शुहदाए बदर को, शुहदाए उहद को, उम्महातुल मोमिनीन को, अहले बैत अतहार को की बात तमाम सहाबा को आप अपनी दुआ में शामिल रख के कहे, मौला सारे सहाबा को इसका सवाब पहुँचे। आप पढ़े, एक सूरा क्यों ना पढ़ो, लेकिन उसका सवाब इस तरीके से आप पहुँचाइए। उसके बाद कहिए इलाहुल आलमीन जितने मुसलमान आज तक इंतकाल कर गए हैं सबको इसका सवाब पहुँचे। उसके बाद सबको सवाब पहुँचाने के बाद आप कहिए इलाहुल आलमीन इसका इसाले सवाब मेरे दादा को पहुँचे, मेरे दादी को पहुँचे, अगर मेरे वालिद को पहुँचे, मेरे वालदा को पहुँचे, मेरे शौहर को पहुँचे, मेरी बीवी को पहुँचे, मेरे भाई को पहुँचे। आप जिन जिन का जिक्र करना चाहते हैं कर लीजिए। नाज़रीन मोहतरम, सबको 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 पूरा पूरा अजर मिलेगा। अजर सबको, जितना एक सूरह फातिहा का या एक सूरह का जितना अजर है सारे मरहूमिन को मिलेगा, फिर उतना ही अजर आप जिनका तज़किरा जिक्र करेंगे उनको भी मिलेगा। अजर में कोई कमी आने वाली नहीं है। तो आप एक पारा भी पढ़ के इसाले सवाब कर सकते हैं, एक सूरा भी पढ़ के कर सकते हैं, एक आयत करीमा भी पढ़ के आप इसाले सवाब कर सकते हैं, मुकम्मल कुरान भी पढ़ के इसाले सवाब कर सकते हैं। आपने रमज़ान से पहले पढ़ा उसको अब उसका भी इसाले सवाब कर सकते हैं। रमज़ान में पढ़ा, अगर आपसे नहीं हो सका तो शव्वाल में आप उसका इसाले सवाब कर सकते हैं। इसके लिए कोई वक्त, कोई दिन, कोई ज़माना मुतय्यन नहीं है। जब आप नियत करके इसका इसाले सवाब करना चाह रहे हैं, आप इन सारे अफराद को अपने जहन में रखिए। उसके बाद जिनको इसाले सवाब करना चाह रहे हैं उनका नाम लेकर कहिए, इंशाअल्लाह सबको इसाले सवाब हो जाएगा। जी बिल्कुल। मौलाना एक और सवाल था कि क़ज़ाए उमरी कैसे अदा की जाए, और क़ज़ाए उमरी अदा करने से जो हमारे ऊपर जो फ़र्ज़ हैं क्या वो यानी पूरे हो जाएंगे? देखिए, क़ज़ाए उमरी यानी उम्र के जब आदमी बालिग़ होता है तो उस पर शरीयत के अहकाम फ़र्ज़ हो जाते हैं। उस पर नमाज भी फ़र्ज़ हो जाती है, उस पर रोज़ा भी फ़र्ज़ हो जाता है, उस पर नमाज और रोज़ा भी फ़र्ज़ हो जाता है। अगर उसके पास माल है तो उस पर ज़कात देना भी फ़र्ज़ हो जाता है। अगर उसके पास इस्तिताअत है तो हज भी करना उस पर ऊपर फ़र्ज़ हो जाता है। बुलूग़ के साथ ही जब आदमी बालिग़ हो जाता है तो उस पर अहकाम लागू हो जाते हैं। तो अगर कोई शख्स 25 साल का है, अब 25 साल के स्टेज में पहुंचा है, या कोई 30 साल की उम्र पर, हम 25 साल को हम एक लेते हैं ताकि क़ज़ाए उमरी का जो तरीक़ा है वो आपको समझने में आसानी हो जाए। और अगर कहीं कोई नमाज आपसे क़ज़ा हुई है तो उसको किस तरीक़े से हम अदा कर सकते हैं, तो वो आपको समझ में आ जाने के लिए मैं 25 साल की एक मिसाल देकर आपको समझाना चाहता हूँ। अब समझिए 25 साल उम्र है और अब वो तौफ़ीक़ हुई है उनको कि अब नमाज़ें पढ़ रहे हैं माशाअल्लाह, अब नमाज और रोज़ों की तरफ आ गए हैं। तो अब उनके दिल में आया कि मैंने अपने बुलूग़ के बाद से बहुत लापरवाही की नमाज़ों से, मैंने नमाज़ें मुझसे क़ज़ा हो गई, मैंने नमाज़ें नहीं पढ़ा है। तो नाज़रीन मोहतरम, अब जब वो 25 साल की उम्र में हैं तो वो 13 साल की उम्र से 25 साल की उम्र तक कैलकुलेशन करें, कितना होगा? 13, 14, 15, फिर 15, 16 से 25, 10 और ये 3, 13, 14, 15, 13 साल की उनकी
उन नमाजें उनसे क़ज़ा हुई है। 13 साल उन्होंने नमाज कोई पढ़ी कोई नहीं पढ़ी, कोई पढ़ी कोई नहीं पढ़ी, रोज़ाना दिन में एक आध पढ़ा या कभी 2 पढ़े, कभी पढ़े कि नहीं पढ़े कि, इस किस्म से एहतिमाल अगर है तो दोस्तों जब 25 साल की उम्र में उनको तौफीक हुई है तो अब उन नमाज़ों का वो क़ज़ा करना चाहते हैं। वो अगर रोज़े उनसे छूट गए हैं तो अब उन रोज़ों का क़ज़ा रखना चाहते हैं। तो दोस्तों ये तरीक़ा बना लें कि आप जब भी नमाज़ पढ़ते हैं, आप जब कभी नमाज़ पढ़ते हैं, जब आप फजर पढ़ रहे हैं तो फजर की फ़र्ज़ के साथ फिर नियत कर लें, मौला मैं अपनी क़ज़ाए उम्री की नमाज़ पढ़ रहा हूँ, जो नमाज़ें मुझसे क़ज़ा हुई है मैं उन नमाज़ों का क़ज़ा कर रहा हूँ, कह के आप 2 रकात क़ज़ा पढ़ लें। तो ये आप 25 साल से आइंदा 13 साल तक, 25 साल से आइंदा 13 साल तक, तो कितने एज में आए तक, 25 से 35, 35, 36, 37, 38, आप 38 साल तक हर नमाज के बाद फिर वही नमाज आप क़ज़ा की नीयत के साथ अदा कर लें, वही नमाज क़ज़ा की नीयत के साथ पढ़ लें। तो और इसमें इंसान एहसास शर्मिंदगी के साथ अदा करे, नदामत के साथ अदा करे, कसूरवार होकर तौबा और इस्तिग़फ़ार करते हुए इन नमाज़ों को क़ज़ा करे आइंदा 13 साल तक। तो दोस्तों ये क़ज़ाए उम्री जो आपकी शुरू के जो 13 साल के नमाज़ें अदा हुई, उसके बाद आने वाले 13 साल में वो नमाज़ें अदा भी होंगी और क़ज़ा जो आप पर रही हैं उनको आप अदा करने से अल्लाह तबारक व तआला के फज़ल व करम से इंशाअल्लाह आपने जो नमाज़ें छोड़ा है उसका क़ज़ा हो जाएगी। तो ये नमाज़ों की तक रहा है। अब रोज़ों का मामला आइए, तो आप क्या पूरे रमज़ानों में आपने रोज़े तर्क किया है? पूरे 13 साल क्या आपने कभी कुछ रखा है? कुछ नहीं। तो दोस्तों अपने हाफ़िज़े के हिसाब से आप उन रोज़ों की भी क़ज़ा कर लें, अपने हाफ़िज़े के हिसाब से हुस्न नियत के साथ, नेक दिली के साथ, अल्लाह की रज़ा के लिए आप अपने रोज़ों की भी क़ज़ा करना, क्योंकि नमाज भी आप पर फ़र्ज़ है, रोज़ा भी आप पर फ़र्ज़ है। तो इस तरीक़े से क़ज़ा करने का तरीक़ा, बेहतर और आसान तरीक़ा यही है, इसी को इख्तियार करें। बिल्कुल, उन्होंने जो तरीक़ा बताया मैं समझता हूँ काफ़ी उम्मीद व मुआविन होगा, चूँकि बैक वक्त तमाम 5 नमाज़ों की क़ज़ाए उमरी पढ़ना मैं समझता हूँ थोड़ा सा मुश्किल गुज़रेगा। तो जिस नमाज के साथ वही नमाज अगर की जाए तो जो है मैं समझता हूँ ये काफ़ी आसान भी होगा और एहसास नदामत और शर्मिंदगी के साथ की जाए तो हुजूर परवरदिगार की बारगाह में जो है कबूलियत भी बख्शेगा। नाज़रीन ग्रामी, हमारा प्रोग्राम नूर रमज़ान ख़त्म रमज़ान तक सह पर 3:30 बजे जारी रहेगा। एक मुख्तसर सा वक्फ़ा है, वक्फ़े के बाद हम फिर हाजिर होंगे और उन्वान पर बात होगी। अस्सलाम वालेकुम। शुक्रे खुदा करो महे रहमान आ गया, तक़सीम करने नेमतें रमज़ान आ गया। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन ग्रामी, दोबारा आपका खैर मक़दम है वक्फ़े के बाद हमारे ख़ुसूसी प्रोग्राम नूर रमज़ान में। वक्फ़े पर जाने से पहले मौलाना ने तफसीली तौर पर बताया कि क़ज़ाए उमरी की नमाज किस तरह पढ़ी जानी चाहिए। मौलाना से 1-2 सवाल इसी ताल्लुक़ से, क़ज़ाए उमरी के ताल्लुक़ से, क़ज़ाए उमरी पढ़ते वक्त क्या सुन्नत मौक़िदा का ख़याल रखा जाना चाहिए? जैसा कि फ़जर के 2 रकात सुन्नत हैं जो कि जो है आम तौर पर जब हम फ़जर की नमाज़ पढ़ते हैं तो ये ज़रूरी करार पाते हैं, इसी तरह असर और मग़रिब वग़ैरह में भी है। तो क्या इन सुन्नत मौक़िदा का ख़याल रखा जाना चाहिए? और दूसरी अहम चीज़ कि बसा औक़ात ये देखा गया है कि जो है क़ज़ाए उमरी पढ़ते वक्त जैसा कि 4 रकात फ़र्ज़ आप असर की पढ़ रहे हैं तो तमाम चारों रकात में सूरह फ़ातिहा के साथ ज़म्मी सूरा भी
پڑھنا ایسا کہا جاتا ہے، تو یہ کہاں تک درست ہے؟ قضائے عمری فرض کی طرح ہی ادا کی جائے گی یا پھر اس میں جو ہے ضمنی سوروں کا اضافہ کیا جائے گا تیسری اور چوتھی رکعت میں؟ جی دیکھیے، جو فرائض کی قضا ہے، فرائض یہ آپ پر فرض ہے، آپ پر ادا نہیں کرنے کی وجہ سے گناہ آپ پر لازم آتا ہے، آپ سے پوچھا جائے گا، مواخذہ کیا جائے گا فرائض کے بارے میں، تو فرائض ہی کی حد تک آپ کو قضا کرنا ہے۔ سنتیں اور وتر واجب الوتر ہے، لیکن وتر کی بھی قضا نہیں ہے۔ سنت مؤکدہ ہے فجر کے 2 رکعت فرض سے پہلے، اور اس طریقے سے دیگر جو سنت مؤکدہ ہے ان سنن کی بھی قضا نہیں ہے، صرف فرائض کی حد تک ہی ہم کو قضا کرنا ہے، سنن اور واجبات کی قضا نہیں ہے۔ اب یہ جو اس کی قضا کیا ہو، اس کا جو آپ سے چھوٹ گیا ہے، یہ نیکیوں کا خانہ خالی ہے، تو اس کی خانہ پوری کس طریقے سے کی جا سکتی ہے؟ تو ناظرین محترم، اس کے لیے آپ کثرت سے نوافل ادا کریں، کثرت سے نوافل کی طرف جڑ جائیں، اور دوسرا خیر و خیرات دل کھول کے کیجیے، خیر و خیرات کا لیے اپنا ہاتھ پھیلا دیجیے۔ تو جو خانہ ان سنن نمازوں میں سنتیں نہ پڑھنے کی وجہ سے آپ کا خالی ہے، اللہ کے فضل سے، اللہ کے کرم سے وہ خانہ بھی فل ہو جائے گا۔ اور رہی بات آپ کا دوسرا سوال جو تھا کہ قضا نمازوں میں اگر ظہر کے ہم 4 رکعت فرض کی قضا کر رہے ہیں، تو دوستو جس طریقے سے ظہر کی فرض ادا کرتے ہیں، قضا بھی مین وعن ویسی ہی ادا کی جائے گی، قضا بھی مین وعن اسی طریقے سے ادا کی جائے گی جیسا ہم فرض ادا کر رہے ہیں، آج کے ظہر کی ادا کرتے ہیں۔ اگر کل کے ظہر کی میں آج کی قضا کر رہا ہوں آج کے ظہر میں، تو مجھ کو اسی طریقے سے سورہ فاتحہ کے بعد ضم سورہ پہلی 2 رکعتوں میں پڑھنا ہوگا، اس کے بعد تیسری اور چوتھی رکعت میں مجھ کو صرف سورہ فاتحہ ہی کی قرات پر اکتفا کرنا ہے، ضم سورہ پڑھنا نہیں ہے۔ تو فجر میں نے ظہر میں آج کی جس طریقے سے قرات پڑھی ہے، کل کی قضا شدہ ظہر تو مجھے اسی طریقے سے ادا کرنا ہے جس طریقے سے آج کی ظہر میں نے ادا کیا ہے۔ بالکل ناظرین گرامی، مولانا نے کافی تشفی بخش انداز میں جو ہے اس کے جوابات دیے کہ کس طرح قضائے عمری ادا کی جا سکتی ہے۔ کالر ہمارے ساتھ ہیں اس وقت، دیکھیں گے کون اور کہاں سے۔ السلام علیکم، شاید یہ کال ڈراپ ہو گئی۔ ناظرین گرامی، جیسا کہ آپ اور ہم جانتے ہیں کہ نہ صرف شہر، ریاست اور ملک بلکہ دنیا بھر میں لاک ڈاؤن جاری ہے، اور خاص کر جہاں ہندوستان کی مرکزی حکومت نے 17 مئی تک اسے توسیع دی تھی، وہیں ریاستی حکومت تلنگانہ نے اسے بڑھا کر 29 مئی کر دیا ہے، یعنی رمضان المبارک کی عید بھی اب جو ہے لاک ڈاؤن ہی میں ہوگی، رمضان کا اختتام بھی لاک ڈاؤن ہی میں ہوگا۔ ناظرین گرامی، روبی چینل اور روبی چینل کا انتظامیہ ایسے متمول حضرات اور سماجی تنظیموں سے پرزور اپیل کرتا ہے کہ وہ غریبوں اور مستحقین میں اشیاء ضروریہ کی تقسیم کو یقینی بنائیں۔ دیکھیے، اس ماہ میں اکثر و بیشتر یہ دیکھا گیا ہے کہ 90% افراد اپنی زکوٰۃ نکالتے ہیں، فطرہ نکالتے ہیں، صدقہ نکالتے ہیں۔ فطرہ تو خیر عید کی نماز سے پہلے دیا جائے گا، لیکن یہ جو معاملہ ہے زکوٰۃ اور صدقات کا جو معاملہ ہے، اس میں دل کھول کر پہلے یہ دیکھا جائے کہ اپنے محلے میں کون ایسے غریب ہیں، کون ایسے لوگ ہیں جو ہاتھ پھیلانے
سے کترا رہے ہیں ان کے گھروں پر اگر اشیاء ضروریہ پہنچائی جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ حقوق العباد میں ایک بہت بڑا حق ادا کرنے کے برابر ہوگا. اس کے بعد اپنے رشتہ داروں میں معلوم کیا جا سکتا ہے. چونکہ پابندی لگی ہوئی ہے، لاک ڈاؤن کے دوران آپ 3 کلومیٹر کے باہر نہیں جا سکتے. یہی وجہ ہے کہ ضرورت اس بات کی ہے کہ آپ اپنے قریبی پڑوسیوں میں یا پھر اپنے ہم محلہ میں اگر ہر کوئی یہ دیکھ لیں کہ ان کے محلے میں کوئی بھوکا نہ رہے، ان کے محلے میں کوئی ضرورت مند کی ضرورت باقی نہ رہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ بڑی حد تک یہ جو معاملہ ہے یہ مسئلہ حل ہو سکتا ہے. چونکہ لاک ڈاؤن بڑھا دیا گیا ہے، مڈل کلاس کی بھی جو پونجی تھی وہ آہستہ آہستہ میں سمجھتا ہوں ختم ہو چکی ہے. کئی افراد ایسے ہیں ہمارے شہر میں جو روزانہ کی اساس پر کماتے ہیں، وہ اگر باہر نہیں نکلتے ہیں تو ان کے گھر چولہا جلنا مشکل ہو جاتا ہے. تو ایسے میں ضروری یہ ہے کہ بااثر افراد، متمول افراد جو یہ استطاعت رکھتے ہیں کہ اپنے ساتھ ساتھ دوسروں کا بھی خیال رکھا جائے، وہ اگر اس معاملے میں آئیں. دیکھیے ایسے معاملے، ایسی گھڑی اور ایسا وقت سالوں میں ایک مرتبہ آتا ہے. میں سمجھتا ہوں یہ دوسری صدی ہے جس میں ایسا وقت، مشکل وقت آن پڑا ہے کہ ایک دوسرے کی ضرورت درکار ہے. یہ پہلا ایسا موقع ہے. میں سمجھتا ہوں یہ جو جنریشن ہے، یہ جو نسل ہے، پچھلی نسل نے بھی ایسا وقت نہ دیکھا ہوگا، اور یہ نسل نے جو وقت دیکھا ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ ایسے افراد کو آگے آنے کی ضرورت ہے تاکہ ان ضرورت مندوں کی ضرورت بھی پوری ہو سکے اور آپ کی دنیا و آخرت بھی بنے اور آپ کو بھی اجر و ثواب جو ہے حاصل ہو سکے. رمضان مبارک جہاں پر یہ وعدہ ہے کہ آپ کی ایک نیکی 70 نیکیوں کے برابر ہوگی، تو آئیے اس ماہ رمضان المبارک میں نیکیوں کو لوٹیں اور نہ صرف یہ کہ اپنی دنیا سنوارے بلکہ آخرت کو بھی سنوارا جائے. آج کا جو عنوان دیا گیا ہے بھلائی کا حکم اور برائی سے روکنا، جو خود قرآن شریف میں ایک آیت کا نزول ہوا ہے، مولانا اس پر کافی تفصیلی بات کی، کچھ حدیثوں کا بھی انہوں نے حوالہ دیا. میں چاہتا ہوں کہ وہ اس عنوان کو جو ہے آگے جاری رکھیں، مکمل کریں. ہماری بات ہوتی رہے گی اور ناظرین سے میں گزارش کروں گا کہ اگر آپ کے ذہنوں میں اس وقت کوئی سوال گھوم رہا ہے تو اسکرین پر ایک نمبر دیا جا رہا ہے، اور اس نمبر پر کال کرتے ہوئے مذہبی یعنی شعبے سے تعلق رکھنے والا سوال، شرعی احکام سے تعلق رکھنے والا سوال، فرائض اسلام سے تعلق رکھنے والے سوال کو آپ ہمارے پروگرام کا حصہ بنا سکتے ہیں. جی مولانا. ناظرین محترم، آج کا ہمارا عنوان امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہے. دوستو، بڑی اہمیت کا حامل ہے. آج ہم نے اس کو فراموش کر دیا ہے. آج ہم اس ذمہ داری کو بالائے طاق رکھ دیے ہیں. دوستو، آپ یا آپ کے بڑوں نے دیکھا ہوگا کہ کس طریقے سے محفلوں میں لوگ ٹوک دیا کرتے تھے. کوئی حرکت غلط ہو، جو خلاف شرع اگر ہو تو برملا اس کو ٹوک دیا جاتا تھا. بتائیے آج کوئی ٹوکنے والا ہے؟ نہیں ہے. سب اس مگن میں ہے کہ میں نے اگر ٹوکا تو اس کے بابا کیا بولیں گے، اس کے انو کیا بولیں گے، اس کے انو کیا بولیں گے. جی ایک کالر ہمارے ساتھ ہے. جی محترمہ، کیا پوچھنا چاہتی ہیں؟ رمضان میں زکوٰۃ کتنی نکالنا، یہ نصاب پر آپ کے منحصر ہوگا کتنی نکالنا. ویسے مولانا سے اس سلسلے میں بھی ہم بات کریں گے. کال کرنے کے لیے شکریہ. جی سوال لے لیتے ہیں. جی بالکل سوال لے لیتے ہیں. دیکھیے، زکوٰۃ سال گزرنے کے بعد زکوٰۃ فرض ہوتی ہے. آپ کے پاس اگر آپ نے 7.5 تولے سونا اگر آپ نے لے لیا، 7 تولے 1 ماشا 2 ماشا 7 تولے آپ ہی حساب رکھ لیجئے. آپ نے اگر 7 تولے سونا اگر آپ نے خریدا ہے
اور پورا 1 سال ہو گیا، تو جو ہی 1 سال گزر گیا آپ پر زکوٰۃ فرض ہے، آپ پر زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے۔ تو اب مسلمانوں کا یہ طریقہ ہے کہ رمضان کا مہینہ آتا ہے تو اس میں خیر و خیرات، نیکیوں کا اجر کئی گنا اضافہ ہو جاتا ہے، ضرورت مندوں کی ضرورت بھی تکمیل ہو جاتی ہے۔ تو اس نیت سے رمضان میں جی ایک کالر ہمارے ساتھ ہے۔ السلام علیکم جی محترمہ، کیا پوچھنا چاہیں گے؟ میں محمد مصطفیٰ، ہمارے والد صاحب پوچھ رہے تھے کہ یہ زکوٰۃ کے جو پیسے ہوتے ہیں جی اس سے آپ کہاں کیا جو شارٹیج ہو رہا یہ راشن کا، جی تو زکوٰۃ کے پیسے سے راشن بات کرتے گا؟ بالکل اسی پر بات ہو رہی ہے۔ کال کرنے کے لیے شکریہ، ابھی آپ کو بتائیں گے۔ جی محترم، زکوٰۃ سے ہی تعلق سے سوال ہے، آپ کنٹینیو کریں۔ یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ کیا راشن بھی جو ہے بانٹا جا سکتا ہے فی الوقت لاک ڈاؤن میں؟ محترمہ توجہ درکار ہے۔ اب جو ہم سوال کا جواب دے رہے ہیں انشاءاللہ آپ کے بھی سوال کو اس میں ہم شامل کر لیتے ہیں۔ تو جو زکوٰۃ دی جاتی ہے رمضان میں، جو نکالی جاتی ہے، تو رمضان نیکیوں کا مہینہ ہے، اور ایک عادتاً ہم رمضان کا مہینہ منتخب کر لیتے ہیں، ورنہ 1 سال ہوتے ہی زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے۔ تو محترمہ آپ رمضان میں زکوٰۃ نکال لیجیے، آپ اگر شعبان میں بھی چاہے تو نکال سکتے ہیں۔ جب آپ کا سال ہو گیا آپ پر زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے، 2.5% آپ کے مال سے زکوٰۃ نکالنا ہے۔ 100 روپئے میں 2.5 روپئے، 100 روپئے میں صرف 2.5 روپئے آپ کو زکوٰۃ آپ کے مال میں سے نکلتی ہے۔ تو یہ زکوٰۃ آپ نکال دیجئے۔ اس میں آپ کے اپنے جو آپ کے اطراف آپ کے معاشرے میں ہیں ان کی ضروریات کی تکمیل اس کے ذریعے ہوتی ہے۔ تو آپ اب پہلے ہی دیکھیے زکوٰۃ کا آپ نے زکوٰۃ نکالا ہے، تو آپ دیکھیے اپنے عزیز و اقارب میں کوئی ضرورت مند ہیں، آپ کے رشتہ داروں میں، آپ کے بھائی بہن، آپ کے خالہ پھپھو، چچا ماموں، ایسے کوئی رشتہ دار جو قریبی رشتہ دار ہیں جو ضرورت مند ہیں، تو دوستو ان کو اطلاع دینے کی ضرورت نہیں ہے، ان کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ زکوٰۃ کا مال ہے۔ آپ بلا کسی خوف کے آپ لے کر جا کے آپ ان کو پیسے دے سکتے ہیں۔ صرف اپنے ماں باپ اور آپ کی اولاد یا دادا دادی، نانا نانی یا پوتا پوتی، ان کے علاوہ آپ شوہر بیوی یا بیوی شوہر کو یہ رشتے زکوٰۃ ایک دوسرے کو نہیں دے سکتے ہیں۔ ماں باقی اس کے علاوہ جتنے رشتہ دار ہیں آپ ہر رشتہ دار کو یہ مال دے سکتے ہیں، اور یہ ضروری نہیں ہے کہ ان کو بتلایا جائے کہ یہ زکوٰۃ کا مال ہے، تو آپ کی زکوٰۃ ادا ہو جاتی ہے۔ آپ پیسے دیجئے یا نہیں، تو جیسا ابھی پوچھا گیا اناج، تو آپ اناج بھی دے سکتے ہیں، آپ پیسے بھی دے سکتے ہیں، یا کوئی اور ضرورت کی چیز ان کو درپیش ہے تو وہ ضرورت کی چیز بھی آپ خرید کے ان کو دے سکتے ہیں، یا ایسا ایک طریقہ بنائیں تو بہتر ہے کہ کوئی ایک ایسا راستہ اختیار کر دیں کہ جس کی وجہ سے وہ اگر معاشی طور پہ کچھ مستحکم ہو جائیں یا کوئی ان کے کاروبار وغیرہ میں کچھ تعاون ہو تو اس طریقے سے تعاون کر دیں، تو آپ کی زکوٰۃ کے مال سے یہ سارے طریقوں سے آپ زکوٰۃ کا مقصد کیا ہے، زکوٰۃ کا منشا کیا ہے؟ مسلمانوں سے غربت کا خاتمہ۔ زکوٰۃ کا مین ہدف کیا ہے؟ زکوٰۃ کا مین جو ہدف ہے، مین اس کا جو منشا ہے زکوٰۃ کا، کہ مسلمانوں سے غربت کا خاتمہ ہو۔ دوستو زکوٰۃ دیں، اس نیت سے دیں کہ میں زکوٰۃ دے رہا ہوں، لیکن دوستو زکوٰۃ لینے والا اس نیت سے لے کہ جو میں رقم دے رہا ہوں انشاءاللہ آئندہ سال میں زکوٰۃ دینے والوں میں میرا شمار ہوگا، میرا شمار ایسا ہوگا۔ تو یقیناً تجارت کیجئے، بزنس کیجئے، کاروبار کیجئے، کمائیے، اور آپ خود زکوٰۃ دینے والے بن جائیے، تو کم سے کم زکوٰۃ لینے والے کم ہوتے جائیں گے، ختم ہو جائیں گے۔ ایک موقع آئے گا زکوٰۃ لینے والے نہیں ملیں گے۔ دور فاروقی میں کیا معمول تھا کہ اطراف و اکناف کے جو گورنرز تھے
उनके पास रकम थी ज़कात की, वहीं का वहीं खर्च होती थी। यहाँ से मदीने से वहाँ तक जाता था तो वहाँ से वो लोग ज़कात का रकम हज़रत उमर फारूक के पास भिजवा देते थे। ये कहते थे कि यहाँ कोई ज़कात लेने वाला ही नहीं है, यहाँ कोई मुस्तहिक़ के ज़कात ही नहीं है, कि वहीं पर कोई ज़रूरत है तो दे दीजिए। तो दोस्तों थोड़े दिन में ये हालात हो गए। तो ज़कात का मसरफ़ बहुत अहम है। हम इंशाअल्लाह जिस दिन हम ज़कात का हम मौजू लेंगे, बताएंगे ज़कात कैसे अदा हो, ज़कात के क्या प्रोजेक्ट्स हों, ज़कात के क्या मफादात हों, ये ज़रूरी है। तो बहरहाल आप ज़कात में पैसे दे दीजिए या कोई ज़रूरत को दे दीजिए जो आप मुनासिब समझ रहे हैं, लेकिन आसान और ज़रूरत अच्छी बात यह है कि आप पैसे दे दें। पैसे दे दें तो वो अपनी ज़रूरत के हिसाब से जैसी ज़रूरत उसको है दरपेश वो खर्च कर लेगा। यही है, अनाज भी ला लेगा, दीगर कोई ज़रूरत है। देखिए आप गल्ला दे दिए, उसके बाद चूल्हा सिलगाने के लिए केरोसिन की ज़रूरत है, गैस की ज़रूरत है। तो बहरहाल सब जने अगर अनाज 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 देते रहेंगे तो दीगर ज़रूरियात का हाल क्या होगा। दूध भी लाना है, सारी चीज़ें हैं। तो बहरहाल जो लोग अनाज दे रहे हैं वो सिलसिला देना, अनाज का सिलसिला जारी रखिए। इनके अलावा जो लोग मज़ीद अब इरादा करते हैं कुछ खैर व खैरात का, ज़कात वगैरह देना, तो बंद मुट्ठी में आप ज़कात की रकम दे दीजिए। बिल्कुल नाज़रीन ग्रामी, हम आपको ये बता दें कि एक प्रोग्राम हम सिर्फ इसी उन्वान पर, ज़कात के उन्वान पर करेंगे, जिसमें मौलाना न सिर्फ ये कि उसके मुख्तलिफ पहलुओं पर रोशनी डालेंगे, बल्कि कुछ ऐसे प्रोग्राम्स और प्रोजेक्ट का भी तज़किरा करेंगे जिसमें आप अपनी ज़कात की रकम दे सकते हैं। मौलाना, आप सवाल लेने से पहले उन्वान पर बात कर रहे थे कि पहले महफ़िलों में टोका जाता था, लेकिन आज ये मामला नहीं रहा। मैं समझता हूँ उस बात को मुकम्मल किया जाना चाहिए। बरादरान मोहतरम, अमर बिल मारूफ नही अनिल मुनकर बड़ा अहम पहलू है, आज ख़त्म हो गया है। ये हमारे मुआशरे से ये पहलू बिल्कुल नापीद हो गया है। मैंने हज़रत आयशा की हदीस सुनाया था कि 18,000 एक बस्ती के नफूस ऐसे थे जिनका अमल अंबिया का था, लेकिन बावजूद इसके उन पर अजाब मुसल्लत किया गया। वजह क्या हुई कि वो लोग भलाई की तरफ बुलाते नहीं थे और बुराई से रोकते नहीं थे। दोस्तों आज यही हाल हमारे मुआशरा का हो गया है। जी मौलाना, एक कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम, कौन और कहाँ से? जी 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 2 रोज़े आपके छूट चुके हैं। जी आपकी उम्र कितनी है मोहतरमा? जी, और आपके घर में कौन कौन है? तो वो लोग रोज़ा हैं? जी 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 बिल्कुल। इस सिलसिले में बात करें, इस सिलसिले में बात करेंगे मोहतरमा। अल्लाह ताला जो है आपको जज़ाए खैर दे, और इस सिलसिले में जो है रोज़े के लिए जो है उठाने के लिए खुद ब खुद हो चुके हैं। जी 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 बिल्कुल, इस सिलसिले में बात करें। ये 2 रोज़े जो छूटे हैं, जी जी, ये जो 2 रोज़े छूटे हैं इनकी क़ज़ा कैसे की जाए, ये जो है हम मौलाना से जानेंगे मोहतरमा। कॉल करने के लिए शुक्रिया और हमारा प्रोग्राम देखते रहें। जी मौलाना। जी मोहतरमा, देखिए आप सहरी में नहीं उठ सकी हैं, अलार्म भी अपना काम किया, इसके बावजूद भी
आप अपनी नींद में रही, थकावट थी, रोज़े ज़रा थोड़ा सा रोज़े ज़रा गर्मा की वजह से रोज़े ज़रा कुछ सख्त हो रहे हैं, तो मौसम के असरात मुरतब हुए हैं आप पर, इसकी वजह से नींद गालिब रही और आप जैसे बता रहे हैं जिस्म भारी वगैरह, ये सारी चीज़ें हैं जो बता रही हैं। फिर आपके घर में आपके लड़कियों का जिम्मेदारी थी कि वो आपको बेदार करते, आपको उठाते, क्यों कि आप रोज़ा रहने वाली खातून हैं, अल्हम्दुलिल्लाह आपने कोई रोज़ा नहीं छोड़ा है, तो ऐसे लोगों को बेदार करना उनकी ज़िम्मेदारी है। माँ को बेनींद से बेदार करना या औलाद को नींद से बेदार करना माँ की ज़िम्मेदारी है सहरी में। तो ठीक है, आपने 2 रोज़े गए, आपको मलाल है, आपको अफसोस है, आपकी बातिनी कैफियत में आपको खौफ व खशियत इलाही की वजह से आप लर्ज़ा बरअंदाम हैं, तो बहरहाल ये रोज़े गए हैं, किसी को मत बताइए, किसी को मत बताइए। अगर कोई कसूर होता है, कोई गुनाह हो जाता है, तो उसको ढांक दीजिए, उसको ढांक दीजिए, ऐलान मत कीजिए, लेकिन जब आइंदा उस कसूर का इआदा मत कीजिए, उस गुनाह का इआदा मत कीजिए। आपके रोज़ा गए हैं तो आप उसके लिए कल आप ये कोशिश करिए कि आप वक्त से पहले उठ जाए। देखिए, अब अज़्म अगर मुस्तहकम हो तो अलार्म की ज़रूरत नहीं, खौफ दिल में जागुज़ी हो तो किसी के बेदार करने की ज़रूरत नहीं है। खुद ब खुद अपने टाइम पे हमको उठ जाना पड़ता है। शैतान करता है, इस किस्म के हरकतें करता है, तो उसको ज़र्ब देना है, उसको ज़र्ब देना है। बोल दीजिए उसको कि अगर कल भी मुझको सुलाया तो रमज़ान के बाद मैं 10 रोज़े 1 रोज़े की क़ज़ा करूँगी। बता दीजिए उसको, आप 2 रोज़े आपके छूटे ना, उसको बोल दीजिए आज सोने से पहले, अगर कल भी मुझको लापरवाही से अगर तू गफलत बरतने लगाया तो मैं रमज़ान के बाद 30 रोज़े रहूँगी 3 रोज़ों की क़ज़ा में। देखिए, आपको वक्त से पहले जगाएगा, आपको वक्त से पहले जगाएगा, उठो मैडम उठो, नहीं तो फिर। तो बहरहाल अपने शैतान को कैसे दुरुस्त करना है, ये हमको ही तरीक़ा इख्तियार करना है। उसको किस ज़र्ब से मार सकते हैं, कैसे उसको हम भगा सकते हैं, ये हमको ही करना है। इसके लिए दुर्रे फ़ारूक़ी मशहूर था, हज़रत उमर का जो कोड़ा था बड़ा मशहूर था। उमर का कोड़ा लोगों के लिए नहीं, उमर का कोड़ा खुद उनके अपने लिए सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता था। रात में सोते थे तो मुहासबा करते थे, जायजा लेते थे, अपना सर्वे करते थे पूरे दिन का कि सुबह कब उठा, फजर कब हुई, उसके बाद क्या मामूल रहा, दिन पूरा क्या रहा। उसके बाद रात में लेके कोड़ा यूँ फिराते थे तो जिस्म पे उसके असरात, उसके निशानात मुरतब होते थे। तो जब ऐसा अमल होगा तो शैतान आपको खैर की तरफ राग़िब कर देगा। तो बहरहाल मोहतरमा 2 रोज़ों की आपको क़ज़ा करना है। आपके जो आपने बताया है थायराइड, बीपी वगैरह, देखिए ये कामन आजकल आम तौर पे ये बीमारियों में लोग इन बीमारियों के शिकार हैं। तो बहरहाल आप अपने डॉक्टर के मशवरे को मुक़द्दम रखिए, लेकिन अभी उस स्टेज में नहीं है। माशाल्लाह आपकी उम्र कोई ज़्यादा नहीं है, 40 साल आपने उम्र बताया है, तो आप बिन सहरी का भी रोज़ा रह सकते हैं। छोटे छोटे बच्चे ऐसे मौसम में भी हम देख रहे हैं कि बच्चों को माँ बाप नहीं उठा रहे हैं, मौसम सख्त है, हालात ऐसे है, तो बच्चों को रोज़ों के लिए नहीं उठा रहे हैं। तो बच्चे क्या कर रहे हैं, रात में सो रहे नहीं, पूरी रात बच्चे बेदारी में गुजारे। मैं वाकिफ़ हूँ, मैं इसलिए कह रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ ऐसे भी बच्चों को पूरी रात बेदार रहे, सहरी करके सो रहे। अगर नहीं उठाए तो बच्चे बिन सहरी का भी रोज़ा रह रहे, तो बिन सहरी का रोज़ा रह सकते हैं। सहरी फ़र्ज़ नहीं है, सहरी सुन्नत है। तसहरू फ़इन्न फ़िस्सुहूरि बरका, सहरी करो, क्यों कि सहरी में बरकत है। सहरी सुन्नत है और रोज़ा फ़र्ज़ है। तो वालो बिल फ़र्ज़, कभी ऐसी सहरी नहीं हुई तो आपका शैतान जो आपको सुला रहा है, दूसरे दिन आप बिन सहरी का रह जाएंगे, तो उन्हें बोलेंगे अरे उठो उठो मोहतरमा उठो, रोज़ा रहो, सहरी करो, उठो। तो इस तरीके से आप तदाबीर, हुस्न तदबीर ज़रूरी है।
हुस्न तदबीर कब होती है? क्योंकि जब नीयत अच्छी है तो तदबीर भी अच्छे तदाबीर इख्तियार कर सकते हैं। तो आप इस तरीके से तैयार हो जाइए, आइंदा कोई ऐसा मौका आना न पाए। अब जो रोज़े गए हैं उन रोज़ों की क़ज़ा आप पर फ़र्ज़ है, उन रोज़ों की क़ज़ा फ़र्ज़ है। इस्तिग़फ़ार कसरत से कीजिए, इस्तिग़फ़ार कसरत से कीजिए। अस्तग़फ़िरुल्लाह अल-अज़ीम मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैह, इसका विर्द कसरत से रखिए। इंशाअल्लाह आने वाले जिन रोज़े इंशाअल्लाह पूरी तरीके से अमन व अमान के साथ हमारा रमज़ान गुजरेगा। जी मौलाना, ये रोज़ों की क़ज़ा आपने जो बताई, ये 2 रोज़े रमज़ान के बाद रहने होंगे या फिर खाना खिलाना होगा, क्या क़ज़ा हो? नहीं माशाअल्लाह, अब ऐसे रोज़े क़ज़ा करके खाना खिलाना बोले तो आसिफ साहब बहुत आसान है, हर कोई खिला देंगे, खाना खिला देंगे। हाँ, ऐसा नहीं है। रोज़े की क़ज़ा आपको ही करनी है। आपका रोज़ा जब आपसे छुटा है, सफ़र की हालत में हो या कोई और, अब इस गफलत में ये रोज़ा छूट गया है, गफलत का तो आपको खमियाजा भुगतना ही है। और अब रही बात शरई तौर पे कुछ रुख्सत है आपको, आप सफ़र में हैं तो आपको इजाज़त है, आप बीमार हैं आपको इजाज़त है, औरत है, बच्ची है, अय्याम में है तो उसको भी रोज़ा न रखने की इजाज़त है। ये सारे सूरतों में रमज़ान के बाद क़ज़ा रखना फ़र्ज़ है। फिर खाना खिला के छूट नहीं सकते आप, किसी को कुछ पैसे दे के छूट नहीं सकते, बल्कि इन्हीं रोज़ों की क़ज़ा आप ही को रखना है। वो किसके लिए है? खाना खिलाना या कुछ पैसे दे देना, ये जो फिदिया, ये जो रोज़ा नहीं रख सकते हैं, जो उम्र के इस स्टेज में हैं कि फिर उस तरीक़े से उनमें तवानाई आने की गुंजाइश नहीं है, सेहत उस काबिल होने के आसार मादूम हैं, तो उन लोगों के लिए ये फिदिया है। आप 25 साल के नौजवान बोल रहे हैं मैं सो गया, मैं रमज़ान के बाद पैसे दे दूंगा या रमज़ान में पैसे दे दूंगा, नहीं, आप पैसे हज़ार लाखों रुपये खर्च कर लो, उसके बावजूद भी आपका रोज़ा आपके ज़िम्मे है, आपको अपने रोज़े की क़ज़ा ही करना है। और बड़े शर्मिंदगी के साथ, बड़े ही शर्मिंदगी के साथ, बड़े ही इंकिसारी के साथ, बड़े ही इज़्ज़ो इंकिसार के साथ आपको इस रोज़े की क़ज़ा करनी है। बिल्कुल। एक कॉलर हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम, कौन और कहाँ से? जी, आपकी आवाज़ आ रही है, अपना सवाल करें। जी जी जी, किस सिलसिले में? कुछ बीमारी है या? जी 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 जी, इंशाल्लाह मोहतरमा, इंशाल्लाह। जी, कोई परेशान हाल खातून है, दुआ के लिए गुजारिश कर रहे हैं, घरेलू हालात ठीक नहीं है मौलाना जी। अल्लाह आपके साथ खैर का मामला फरमाए, अल्लाह आपका मुमीद व मुआविन रहे। आमीन। अल्लाह जिन हालात से आप दो चार हैं, अल्लाह आपके हालात को बेहतर से बेहतर हाल में बदल दे। आमीन। वसल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही व नूरि अर्शिही सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिही व सहबिही व बारिक वसल्लम। बिल्कुल। तो नाज़रीन ग्रामी, हम आपको बताते चले कि हमारा जो खुसूसी प्रोग्राम है नूर रमज़ान, ख़त्म रमज़ान तक 3:30 बजे से पहर जारी रहेगा। एक कॉलर हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी, अपने टेलीविज़न की आवाज़ थोड़ी धीमी कर लें और अपना सवाल करें। जी जी, वालेकुम सलाम। नहीं, आपका जो सवाल है, आप ये पूछना चाह रहे हैं कि 10 बजे रोज़ा तोड़ सकते हैं? नहीं, प्रॉब्लम क्या है? रोज़ा क्यों तोड़ना चाह रहे हैं आप? जी अच्छा अच्छा जी जी
जी जी इस सिलसिले में बात करेंगे मोहतरम, इस सिलसिले में जो है मौलाना से हम बात करेंगे। एक कॉलर और साथ है। अस्सलाम वालेकुम, कौन और कहाँ से? जी मोहतरम, अपना सवाल करें। आपकी आवाज़ आ रही है, अपना सवाल करें मोहतरम। जी शुगर ज़्यादा है, एज क्या है आपकी, उम्र क्या है? जी डॉक्टर से कुछ मशवरा किया है शुगर के बारे में? जी जी, इससे कबल, लॉकडाउन से कबल जो है डॉक्टर ने क्या कहा था? जी ठीक है, इस सिलसिले में बात करेंगे मोहतरम। आप हमारा प्रोग्राम देखते रहें, हम बात करेंगे कि क्या करना है। कॉलर साथ है। अस्सलाम वालेकुम, कौन और कहाँ से? जी मोहतरम। जी अपना सवाल करें आप। ठीक है, बिल्कुल इस जी बिल्कुल इस सिलसिले में पूछेंगे मौलाना से। आप इमामत करना चाहते हैं और कुरान शरीफ देख के पढ़ना चाहते हैं? बिल्कुल बात करेंगे। कॉल करने के लिए शुक्रिया। जी प्रोग्राम के अख्तामी मराहल आ चुके हैं मौलाना। मैं चाहूँगा कि जल्द अज जल्द ये 2-3 सवालात जो हैं, एक साहब ने सवाल किया था कि रोज़ा तोड़ना कैसा है, उन्हें बहुत शिद्दत का दर्द हुआ था और घर वालों ने जो है फौरी उन्हें कहा था कि रोज़ा तोड़ा जाए, लेकिन उन्होंने नहीं तोड़ा और 2 घंटे के बाद जो है वो दर्द चला गया। और दूसरा जो शुगर पेशेंट ने कॉल किया था कि वो रोज़े के बारे में पूछ रहे थे, और एक जो है तरावी की नमाज में क्या कुरान शरीफ देख कर पढ़ी जा सकती है? देखिए हम सवालात के जवाब ले लेते हैं। जी मुख्तसर पहले तो सवाल, नमाज में कुरान देखकर नहीं पढ़ा सकते जी। तरावी की नमाज में या कोई और नमाज में, तरावी ही क्यों ना हो, कुरान देखकर आप नमाज नहीं पढ़ सकते हैं। नमाज में आपको ज़ुबानी अपने हाफिज़े में जो आपको याद है उन्हीं आयत के साथ मुख्तसर पढ़िए, आपको जितना याद है उतना, लेकिन देखकर अगर तरावी पढ़ेंगे तो आपकी तरावी की नमाज नहीं होगी। और दूसरा सवाल कि शुगर के मरीज़ हैं, तो देखिए यहाँ पर हम आपको कुछ नहीं कह सकते हैं। जैसा कि आसिफ साहब ने भी आपसे कहा कि आप डॉक्टर से मशवरा करिए, कितनी आपकी शुगर है, क्या स्टेज है, क्या आपके तिब्बी रिपोर्ट्स हैं और आपके बॉडी का क्या सिचुएशन, क्या कंडीशन है। तो ये हम आपको यहाँ से उसका कोई जायज़ा या उसका जवाब नहीं दे सकते हैं। ये आप अपने डॉक्टर से रुजू हो जाइए, मुस्लिम डॉक्टर से मशवरा कीजिए। अगर वो आपको रोज़ा रखने से मना कर रहा है तो शुगर का इलाज है, हाई हो रही है या लो हो रही है, तो कुछ वक्त के बाद, कुछ दवाओं के बाद वो नॉर्मल हो जाती है। तो आप रमज़ान के बाद अपने रोज़ों की ख़ज़ा कर लीजिए। अगर डॉक्टर इस वक्त आपके लिए रोज़ा मुज़िर बता रहा है तो आप रोज़े से रुक सकते हैं। रमज़ान के बाद आपको इन रोज़ों की ख़ज़ा करना है। तीसरा सवाल जो जनाब का था कि शिद्दत की तकलीफ़ है, क्या रोज़ा तोड़ा जा सकता है? तो मेरे भाई, तकलीफ़ या 10 बजे तक जब रोज़ा आगाज़ हो जाता है तो रोज़ा गुरूब आफ्ताब तक रोज़ा है, किसी भी वक्त रोज़ा नहीं तोड़ा जा सकता है। ये हमारे जहनों में है कि 10 बजे से पहले रोज़ा वो कर लो, रोज़ा तोड़ लो, रोज़ा तोड़ ले सकते, ऐसी कोई बात नहीं है। खिलाफ़ शरअ बात है, ये इंतहाई नामाकूल बात है कि 10 बजे से पहले रोज़े को तोड़ सकते नहीं। जब नियत कर लिया है आपने तो अब आपका रोज़ा गुरूब आफ्ताब तक आपको रोज़ा रखना है। 10 बजे से पहले, 9 बजे से पहले, 8 बजे से पहले या फजर से पहले नहीं। रोज़े की नियत कर लिए हैं, आप रोज़े में हैं, अब आपको अपना रोज़ा मुकम्मल करना है। अगर कोई नागहानी सूरत हाल हो जो आपके लिए हलाकत खैज़ हो या आपके लिए मुज़िर असरात देर पा मुरतब करने की अगर कोई मर्ज़ लाहक हो जाए, ऐसी कोई नाकाबिल जिसमें आपको फ़ौरन ट्रीटमेंट लेना है, दवा लेना है, वरना आपके लिए मुज़र्रत रसा है, हलाक करने का बाइस बन जाता है, तो इन सूरतों में आप अपना रोज़े को मौकूफ़ करके आप दवा की तरफ रुजू हो सकते हैं। बसूरत दीगर आप रोज़े को नहीं तोड़ सकते हैं, रोज़े से आप नहीं निकल सकते हैं। इस सूरत में आपको कफ़ारा देना पड़ेगा।
मुसलसिल 60 रोजे आपको रहना पड़ेगा। अगर आपने 10 बजे से पहले खा लिया पी लिया तो ये अमल गलत है, गैर मशरू है, नाकाबिल फ़हम अमल है। बिल्कुल नाज़रीन ग्रामी, मौलाना ने तफसीली तौर पर जवाबात दिए, तशफ़ी बख्श जवाबात दिए। हमारा ये प्रोग्राम सपहर 3:30 बजे रोज़ाना ख़त्म रमज़ान तक जारी रहेगा। मैं मौलाना का मशकूर हूँ कि उन्होंने बावजूद गुनागो मसरूफ़ियात के अपना वक्त हमें दिया। और नाज़रीन, हम इस उम्मीद के साथ इस प्रोग्राम में आपसे इजाज़त लेते हैं कि इंशाअल्लाह कल हम फिर हाजिर होंगे और उम्मीद ये रखते हैं कि आपका आने वाला दिन अच्छा होगा। अस्सलाम वालेकुम। शुक्रे खुदा करो महे रहमान आ गया, तकसीम करने नेमतें रमजान आ गया। अल्लाह तेरा है एहसान, रोज़ नमाज़ें और कुरान है ये सब रूहे ईमान, नूरे रमजान।